Now, good morning, student. Today we will see the experiment number 5, practical number 5, related decision making and branching using if and if else structure. For that, we will take one example, that is to find whether entered year is a leap year or not. For that, we will take edit one blank screen for writing the program. So we write the program related to the leap year. So we write here include all the header file stdio.h header file, then hash include conio.header file, then start of your program. So we write here write main, open the curly braces and close the curly braces and get stage for end of the program. In between to this function, we write the code of leap year. So we require one integer variable, that is year. So we will get here year. Now print here enter in year. तो ईयर जो है वो हम स्कैन करके रखेंगे परसेंट डी इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल इट इज. सो वी राइट हियर परसेंट डी एंड परसेंट ईयर. इस वेरिएबल में हमने वो ईयर कॉपी किया, सेव करा, स्टोर करा. देन we write the condition for the leap year, that is year. First bracket for leap year we have three. We want to check three conditions. First condition is year mod 4 is equal to 0 when this condition is a true. And again we will check another condition. So we write here AND operator, logical AND operator, and second condition is year mod not equal to 100, not equal to 0 and mod 100. ये होना चाहिए year mod 100 not equal to 0. When this condition is a true, then the entered year is a leap year. Okay, this is the first condition. And another condition, that is or. अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे भी हो सकता है. So we write here or, and condition is year mod 400 is equal to 0. मतलब 400 से 400 से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है. तो those year, such type of year is also leap year. And when these two conditions are true, then this particular year is also leap year. So when executing these all three conditions, then we will easily decide this particular year is a leap or not leap year. When this condition is a true, then we will print here percent year is a percent t data type. So we write here percent t and display message percent t year is a leap year, is a leap year. ये मैसेज हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया. और ये परसेंट वैल्यू जो है वो ईयर में है, तो हमने यहाँ पे ईयर जो है वो वेरिएबल भी डिस्प्ले किया. When above condition is a false, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं और सिस्टमैटिक वे. सो वी राइट हियर curly braces. When the if condition is a true, then execute
these curly braces. When above condition is false, then execute the this else statement. When above condition is false, then execute the else part. So we write here percent d here is not here. Here. Okay. And percentage value for year वेरिएबल. सो यहाँ पे हमने ईयर डिस्प्ले किया है. ये परसेंटेज जो है वो हम ये ईयर वेरिएबल के लिए है, और ये परसेंटेज जो पर्टिकुलर ईयर है वो डिस्प्ले होना चाहिए और इंटीजर टाइप का है. सो ये राइट हियर परसेंटेज. ठीक है, स्टार्टिंग में ईयर हमने लिखा है, और इन प्रीवियस प्रोग्राम वी राइट दिस percentage is here like but output variable will display first and show related to this output variable, show the message related to your output variable. So we display here particular year. This year means one number is displayed, integer type of number is displayed, and that number that year is a leap year ऐसे मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए. जस्ट वी सी आफ्टर कंपाइलेशन. सो आई कंपाइल द प्रोग्राम. वन डिफाइंड सिंबल ईयर. यहाँ पे हमारा ईयर का स्पेलिंग थोड़ा चेंज कर लेते हैं. अभी डिक्लेरेशन एरर कंप्लीट हो चुका है. यहाँ पे एल्स में if के बाद कभी आपको सेमीकोलन यहाँ पे लिखना नहीं है. ओके, तो ये आपको नहीं लिखना है. देन रन द प्रोग्राम. मान लो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ 2016. तो 2016 ईयर इज अ लीप ईयर. ओके, और अगर मान लो मैं एंटर कर रहा हूँ 2000 ईयर इज अ लीप ईयर है. अगर मान लो मैं यहाँ पे 2021 लिखता हूँ, इज नॉट अ लीप ईयर. तो यहाँ पे 2021 इज नॉट अ लीप ईयर ये मैसेज आ रहा है. और प्रीवियस स्क्रीन अगर आपको क्लियर करना है तो आप यहाँ पे CLR कर सकते हैं. Okay, so this is the program of leap year to calculate to find whether entered number, entered year is leap year or not. So for that we check here three conditions. First condition, mod year mod 4 is equal to 0, or year mod 100 not equal to 0, and year mod 400 equal to 0. Then when these all conditions are satisfied, then then we print the particular year or entered year is the leap year. Also in this way we studied the first decision making program, and we save the program experiment number 5 underscore program number 1.cpp. In this way we store and save the program. This is the particular structure for making decision. तो हमने यहाँ पे दो डिसीजन लिए, लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है. When the if condition is a true, then we display leap year. When this condition is false, then we execute the else statement or display the else statement. Okay. Now we will see one more program that is related to the string operation. तो हमारा स्टेटमेंट था प्रोग्राम में कि given or entered string is palindrome or not.
ये वाला स्टेटमेंट आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में पूछा गया है। That is write a program, C program to determine whether a string is a palindrome. String is a palindrome है नहीं है ये आपको बताना है। Before that, before I write the program here, you understand what is the palindrome. Palindrome मतलब क्या है? तो palindrome का मतलब ये है, palindrome का मतलब क्या है? तो आप जो स्ट्रिंग एंटर कर रहे हो और वो स्ट्रिंग अगर उसको रिवर्स करने के बाद ओरिजिनल स्ट्रिंग एंड रिवर्स स्ट्रिंग बोथ आर सेम होगा तो हम उसे पैलिंड्रोम कहते हैं। एंटर्ड स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम ये कहते हैं। तो दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज डिपेंड्स ऑन द स्ट्रिंग ऑपरेशन। सो वी फर्स्ट वी राइट हियर हैश इंक्लूड stdio.h header file, then hash include conio.h header file, then we add hash include string header file, strng string.h header file, because few functions from this header file we use here in our program. Because this program is related to the string operation, so we require the string.header file. So we write here string.header file. Then we'll start the program by using void main, then curly braces, and for end of the program we use close the curly braces and use the function that is getCH. That is the structure of our C program. So we write here first. Write the structure. In that structure, we add our problem statement. Our problem statement to check whether entered string is a palindrome or not. For that, we require the two strings. So we write here one string A having size 100 and another string is a B having size 100. तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि A नाम का एक स्ट्रिंग लिया है, B नाम का एक स्ट्रिंग लिया। A नाम का स्ट्रिंग जो है वो 0 से लेके 100 तक है कैरेक्टर का है, और B जो स्ट्रिंग है वो 1 से लेके 100 तक कैरेक्टर उसमें हो सकते हैं। मे बी वो 4, 5, 10, 15 लेकिन उसका मैक्सिमम लिमिट जो है वो 100 यहाँ पर 100 है। Then we write here 10. The string capacity is 10. Okay, so we write here 20 and 20 string size is 20, मतलब 20 कैरेक्टर का हमारा स्ट्रिंग हो सकता है, एज एन इनपुट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल दो स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी है। अभी मुझे ये स्ट्रिंग क्या करना है, रीड करना है। सो वी राइट हियर प्रिंट हियर एंटर द स्ट्रिंग। हमें एक स्ट्रिंग एंटर करके लेना है, तो एंटर करने के लिए आप स्कैन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं और गेट यस नाम का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, और गेट यस में हम ये स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने जो भी स्ट्रिंग एंटर किया वो स्ट्रिंग कॉपी किया, असाइन किया ए नाम के वेरिएबल को, ए नाम के स्ट्रिंग को असाइन किया। अभी हमें ये स्ट्रिंग तो मिल चुकी है, अभी ये जो मिला हुआ स्ट्रिंग है हमें वो स्ट्रिंग कॉपी करना है बी स्ट्रिंग में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं strcpy, मतलब कॉपी द स्ट्रिंग इनटू बी, मतलब ये स्ट्रिंग हमने बी स्ट्रिंग में कॉपी की। तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिखे ए बी कॉमा ए, ए इज द सोर्स एंड बी इज द डेस्टिनेशन। तो हमारा ए स्ट्रिंग बी में कॉपी हो चुका है। अभी जो स्ट्रिंग कॉपी हुआ है उसे हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए अभी हमें कुछ ज्यादा लॉजिक यहाँ पे वो यूज करना नहीं है। तो रिवर्स करने के लिए rev नाम का एक फंक्शन है string.header फाइल में, वो फंक्शन हमें यहाँ पे कॉल करना है। सो वी जस्ट राइट str रिवर्स एंड उसको हमें b वेरिएबल पास करना है, b स्ट्रिंग पास किया है।
तो ये बी स्ट्रिंग अभी रिवर्स हो चुका और ये बी वेरिएबल में बी स्ट्रिंग वेरिएबल में वो जो स्ट्रिंग था एंटर किया हुआ वो रिवर्स हो चुका है और वो बी में सेव हो चुका है। ठीक है, अभी ये जो हमारे पास दो स्ट्रिंग है, ए में एक ओरिजिनल स्ट्रिंग है और बी में एक रिवर्स किया हुआ स्ट्रिंग आया हुआ है। अभी हमें क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है। if it is both are same और different, तो ये चेक करने के लिए हमें और एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है strcmp। तो स्ट्रिंग कंपेयर नाम का ये फंक्शन है और ये फंक्शन फंक्शन के लिए हमें दो स्ट्रिंग पास करना है, a, b। अभी ये जो फंक्शन हमने लिखा है ये फंक्शन ऑलवेज रिटर्न सम वैल्यू। अभी ये फंक्शन जो है ये फंक्शन रिटर्न करते हैं सब वैल्यू, दैट वैल्यू इज 0 और 1 और ग्रेटर देन 0। वैल्यू जो है वो क्या होती है, इक्वल्स टू 0 होती है, इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। मतलब ये जो फंक्शन है वो तीन तरीके के रिजल्ट रिटर्न करता है। तो फर्स्ट रिजल्ट जो है वो इक्वल्स टू 0, मतलब बोथ स्ट्रिंग ए एंड बी ग्रेटर है, और अगर स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब 1 2 3 ऐसा कुछ रिटर्न वैल्यू इसका आ रहा है, तो ये फंक्शन में ये स्ट्रिंग ग्रेटर है बी से। और सपोज ये फंक्शन strcmp फंक्शन की रिटर्न वैल्यू लेस देन 0 है, लेस वैल्यू आ रही है, 0 से लेस है, तो ये स्ट्रिंग जो है वो लेस रहेगा बी स्ट्रिंग से। ठीक है, तो ये इस तरीके से तीन डिसीजन हमें यहाँ पे लेना है, इसके वैल्यू है डिसीजन है। तो इसमें से हमें कौन सा डिसीजन अभी हमें यहाँ पे लेना है, यूज करना है। रिटर्न वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। रिटर्न वैल्यू अगर 0 आ रही है तो ये दोनों स्ट्रिंग सेम है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे पहले, ये दिस कंडीशन इज ट्रू। अगर रिटर्न वैल्यू 0 आ रही है मतलब ए एंड बी स्ट्रिंग सेम है, अगर ये ट्रू है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ एंटर्ड स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम है। ठीक है, अदरवाइज एल्स पार्ट होगा, दैट इज उसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ एंटर्ड स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है नहीं है ये डिस्प्ले किया और प्रोग्राम एंड किया। अभी यहाँ पर हमें ये चेक करके देखना है कि एक स्ट्रिंग एंटर करके देखना है और वो स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, और रिवर्स करने के बाद वो पैलिंड्रोम है नहीं है वो डिसीजन लेना है। तो हम पहले करते प्रोग्राम को रन करते हैं, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है, इफ स्टेटमेंट मिसिंग। तो स्टेटमेंट कौन सा मिसिंग हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक ब्रैकेट यहाँ पे लिया, यहाँ पे ये फंक्शन यहाँ पे शुरू किया था। ठीक है, ये वाला है, रिमूव करो क्योंकि ये इफ ब्रैकेट स्टार्ट किया यहाँ पर और इफ ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज किया, और इसके अंदर हमें यूज करना था स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन। तो फंक्शन का ये ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट किया और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा राउंड ब्रैकेट जो आया था तो उसे हमने डिलीट किया। अगर उसे डिलीट नहीं करते तो यहाँ पे एक एरर आता है, द स्टेटमेंट इज मिसिंग। सो यहाँ पे हम उसे क्लोज कर देंगे, मतलब रिमूव करेंगे। अभी कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने के बाद
हमें कुछ एरर्स है नहीं है वो चेक करना है, तो Alt C करेंगे तो कंपाइलेशन एरर, यहाँ पे एक एरर आया C, उसको निकाल दो, 0 एरर है। देन रन द प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो तो एंटर स्ट्रिंग, अभी हम यहाँ पे फेस अभी एक स्ट्रिंग एंटर किया, तो एंटर स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। फेस नाम का जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम नहीं है, बिकॉज अगर ये फेस को हम रिवर्स करते हैं तो ECAF ऐसा वर्ड आता है, तो इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। अगर हमें पैलिंड्रोम देखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैडम, तो मैडम जो स्ट्रिंग है, एंटर स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, क्योंकि अगर हम मैडम को रिवर्स करते हैं तो मैडम का रिवर्स मैडम ही वर्ड आता है, तो बोथ स्ट्रिंग आर सेम, सो एंटर्ड स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, तो हम उसे पैलिंड्रोम कह सकते हैं। सॉरी, अब यहाँ पर जो प्रीवियस वाला स्क्रीन था वहां पर बहुत सारे लास्ट वाला जो आउटपुट दिख रहा है, और अगर हमें वो आउटपुट नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन यूज कर सकते हैं, और क्लियर स्क्रीन करने के CLR ये वाला फंक्शन हमें यहाँ पे कॉल करना है क्लियर स्क्रीन करने के लिए। और जैसे आप देख लेते हो तो प्रीवियस वाला स्क्रीन पूरा क्लियर हो चुका है। अगर हम यहाँ पे बाबा एंटर करते हैं तो बाबा का रिवर्स करने के बाद आबा ये ऐसा वर्ड आता है, तो आबा इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम, तो यह यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। Such type of decision making we have to done or we have to seen by using the decision making structure। तो डिसीजन लेने के लिए हमने आज इस एक्सपेरिमेंट में if और else ये दो नए वर्ड्स का इस्तेमाल यहाँ पर हमने किया है। तो if it is a one keyword and else it is also one keyword, and by using these two keywords we will take the decisions, that is if decision and else decision, true or false, ऐसे दो डिसीजन हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया। ठीक है, अभी इस प्रोग्राम को सेव करने के लिए हम जाते हैं फाइल मेनू में, सेव एज बटन को क्लिक करते हैं। एक्सपेरिमेंट हमारा 5 है तो हम एक्सपेरिमेंट 5 प्रोग्राम 2 है तो p2.cpp से हम इसे सेव करेंगे। जैसे ये प्रोग्राम सेव होता है, नाउ वी विल सी द थर्ड एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे देखेंगे, थर्ड प्रोग्राम यहाँ पर हम देखेंगे, और उस प्रोग्राम का नाम है टू फाइंड एंटर्ड नंबर इज इवन और ऑड। इवन नंबर है क्या, ऑड नंबर है, ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे stdio.h हेडर फाइल, then hash include /cio.h header file, then start the program। so void main लिखेंगे और प्रोग्राम का एंड करने के लिए get ch लिखेंगे, और in between this function we write the code of your problem statement, and our problem statement to find enter number is even or not। तो हमें यहाँ पे एक नंबर लेना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे एक इंटीजर नम वेरिएबल डिक्लेयर किया। अभी ये नंबर की वैल्यू लेना है तो printf फंक्शन राइट हियर एंटर एनी नंबर, तो सब एक नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा और स्कैन किया, स्कैन एफ %t एंड % नंबर, वो नंबर हमने यहाँ पे स्कैन किया। नंबर में एक वैल्यू अभी आ चुकी है, जो हमने कीबोर्ड से जो भी वैल्यू डाला हुआ है वो रीड हो जाएगा, स्कैन हो जाएगा, और इन नम नाम के वेरिएबल पे असाइन हो जाएगा। ठीक है, अभी नंबर तो मिल गया, अभी वो नंबर इवन है ऑड है वो हमें जस्टिफाई करना है। तो वो करने के लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखते हैं, तो ये कंडीशन स्टार्ट करेंगे, तो ये ब्रैकेट ओपन करो, जो भी नंबर है वो नंबर का अगर डिवाइड करते हैं 2 से
2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, तो वो नंबर क्या है, इवन नंबर। So in this way we write the condition. If this condition is a true, अगर ये condition true है तो हम यहाँ पे लिखते हैं print या entered number is even। वो नंबर क्या है, even है। अगर नंबर आपको प्रिंट भी करना है तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के नंबर किसमें शो है, ये नम नाम के वेरिएबल में, तो वो यहाँ पे हमने लिखा और इस यहाँ पे दोनों सेपरेट है। डबल कोड में जो लिखा है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा और नंबर में जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी, इसलिए हमने नम नाम का वेरिएबल लिया। ये बोथ आर डिफरेंट है, तो यहाँ पर हमें कॉमा देना जरूरी है, तो हमने कॉमा दे दिया। और ये जो नंबर है ये कौन से टाइप का है वेरिएबल, अगर ये %t टाइप का है तो हम यहाँ पे %t लिख रहे हैं, ठीक है। अगर ये नंबर फ्लोट का होता है तो हम यहाँ पे फ्लोट f लिखते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल नंबर इवन यहाँ पर आ चुका है। ऊपर वाला कंडीशन वेयर if कंडीशन इज अ फॉल्स, then else statement is executed, that is else body will start, and in that else body we print the will print %d is odd number। और ये नंबर जो है वो नम नाम के वेरिएबल में है। इसमें थोड़ा सा चेंज करके %d is odd number ऐसे हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ %d is a even number, ठीक है। या इसे थोड़ा सा चेंज किया है, आउटपुट जो डिस्प्ले हो रहा है उसमें। तो इस तरह से तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो दो डिसीजन मैंने यहाँ पे ली, नंबर इवन और नंबर ऑड, ठीक है। तो इसी तरह हमारा इवन ऑड का प्रोग्राम हो जाता है। तो उसे रन करिएगा %Alt+C से, और Alt+R बटन प्रेस करके भी आप उसे रन कर सकते हो। अगर मैं नंबर एंटर करता हूँ 20 और 20 इवन नंबर है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाएगा कि नंबर 20 इज इवन। और मैं यहाँ पे 13 नंबर प्रेस करता हूँ तो 13 इज ऑड नंबर, ये आ चुका है। अब ये प्रीवियस वाला भी स्क्रीन दिखा रहा है स्ट्रिंग प्रोग्राम का, और ये करंट प्रोग्राम का भी स्क्रीन दिखा रहा है। तो ये चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, CLR फॉर क्लियर, और स्क्रीन के लिए CSCR, ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज करके हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे स्क्रीन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये प्रीवियस स्क्रीन क्लियर हो चुका। अभी आप यहाँ पे 33 एंटर करते हो, 33 इज अ ऑड नंबर, ओके। Now in this way we studied here the odd even program by using if else structure और decision making structure यूज करके हमने even odd number फाइंड आउट किया। अब इसे सेव करना है तो सेव करने के लिए सेव एज पे जाते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर आई है और हमारा ये प्रोग्राम जो है P3 है, तो हमने यहाँ पे P3 लिख दिया और .cpp से ये प्रोग्राम सेव कर दिया, ठीक है। So in this way we studied here third program related this fifth practical. Now we will see one more program, that is to find entered number is entered number is पॉजिटिव और निगेटिव नंबर, ठीक है। जो भी नंबर एंटर करोगे वो पॉजिटिव है क्या निगेटिव है वो आपको देखना है। पॉजिटिव नंबर मीन्स ग्रेटर देन 0 वैल्यू, निगेटिव मीन्स लेस देन 0 वैल्यू। तो ये अगर आपको पता है तो वो आपके कोड में लिखना है, एक कंडीशन डालना है, और अगर वो कंडीशन ट्रू है तो एक डिसीजन, कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा डिसीजन।
ये ऐसे इस तरीके वाले प्रोग्राम्स अगर आपको लिखना है, राइट करना है, तो आप कैसे लिख सकते हो? तो बाय यूजिंग द decision making structure, if else structure, you can do such a program. So now we will see here one more, that is to find enter number is positive or negative. So we write here, include here all stdio dot h header file, then hash include then start of the program and end of the program. So we write here ch and main function, and here we take one number, that is n. तो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है और नंबर के लिए मैंने वेरिएबल n यूज किया है, ठीक है। तो n इज द नंबर, और अब ये नंबर मुझे रीड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट हियर एंटर एनी नंबर। तो यहाँ पे नंबर एंटर करूंगा, तो स्कैन करने के लिए स्कैन हियर %d, और जो भी नंबर है वो मैंने n में सेव किया। मतलब जो भी नंबर एंटर करोगे वो नंबर n वेरिएबल में सेव हो जाएगा, स्कैन हो जाएगा, रीड हो जाएगा। जैसे ही n मिल जाता है तो हमें एक कंडीशन लिखना है, ये अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब n की वैल्यू ग्रेटर है और इक्वल टू 0 है, देन हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट हियर नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये नहीं है तो हम लिख सकते हैं एल्स वाला पार्ट, मतलब फॉल्स वाले कंडीशन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट हियर नंबर इज नेगेटिव, नंबर जो है वो नेगेटिव है, एंटर किया हुआ नंबर नेगेटिव है। तो इसी तरह का तरीके से भी आप डिसीजन ले सकते हो, राइट कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी एक नंबर एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर रीड करने के लिए हमें %d लिखना है, ठीक है, और alt-c, और क्लियर स्क्रीन के लिए भी मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ CLR, स्टार्टिंग में ही लिखो सेमीकोलन। प्रोग्राम कंपाइल करो, 0 एरर आ रहा है, प्रोग्राम रन करो, एग्जीक्यूट हो जाएगा। नंबर एंटर करो 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, ओके, ये डिसीजन आया। अभी मैं एंटर करता हूँ -22, तो नंबर इज अ नेगेटिव, -22 मतलब नेगेटिव नंबर आया। तो यहाँ पे दो डिसीजन हमने लिए, दो डिसीजन अगर आपको लेना है तो बाय यूजिंग सम कंडीशंस यू कैन राइट वन स्टेटमेंट। When condition is a true, then we can display one statement. When condition is a false, then we execute another statement. Such type of things we implement in your program. In that case, we use the if and else structure. तो इस तरीके से आप if one condition, else another condition, अगर if true होगा तो ये statement, अगर if फॉल्स होगा तो ए वाला स्टेटमेंट। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अभी ये हो गया हमारा पूर्ण प्रोग्राम। सो वी राइट हियर एक्सपेरिमेंट नंबर 5 अंडरस्कोर प्रोग्राम नंबर 4.cpp, ठीक है। वन मोर वी विल सी वन मोर एग्जांपल फॉर our better understanding. We will find the greatest from two numbers. आपको क्या करना है, दो नंबर यूजर से लेना है और वो दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये डिसीजन अगर आपको लेना है,
देना है तो आप कैसे लिख सकते हो? सो फॉर दैट वी इंक्लूड ऑल द हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड yesterday.h हैश इंक्लूड onio.h। ये मैंने हेडर फाइल्स यहाँ पे ऐड कर ली और मेरा प्रोग्राम स्टार्ट किया वाइड मेन से और पब्लिक ब्रैकेट से, और प्रोग्राम एंड करने के लिए मैंने गेट ch लिखा और यहाँ पे प्रोग्राम को एंड किया। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं मुझे दो इनपुट्स लगने वाले हैं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीजर a कॉमा b। ये दो नंबर मुझे लगने वाले हैं बिकॉज आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम टू वेरिएबल्स। अभी दो वेरिएबल्स लेंगे, दो नंबर लेंगे, वो दो नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है वो हमें फाइंड करना है। तो हमने दो वेरिएबल लगने थे तो दो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। अब ये दो वेरिएबल पे मुझे वैल्यू रीड करना है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट हियर एंटर एनी टू नंबर, कौन से भी दो नंबर एंटर करिए। अभी ये मैसेज स्क्रीन पर दिखेगा तो आप दो नंबर एंटर करोगे तो वो दो नंबर रीड स्कैन हो जाएगा। पहला नंबर %d डबल कोट के अंदर लिखना है, %d फॉर फर्स्ट नंबर, %d फॉर सेकेंड नंबर, डबल कोट कंप्लीट, कॉमा। अभी फर्स्ट वेरिएबल जो है वो हमारा मान लो ये है तो मैं यहाँ पे एम्परसैंड ये लिखूंगा, और सेकेंड वेरिएबल जो है हमारा b है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्परसैंड b। इस तरीके से मुझे फर्स्ट a वेरिएबल मिला, b वेरिएबल मिला, दो वैल्यू तो मिल चुकी। अभी मुझे a ग्रेटर है क्या b ग्रेटर है ये चेक करना है तो मुझे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करके मैं ये लिख सकता हूँ। तो ये लिखने के लिए मुझे सिंटैक्स में क्या चाहिए, ये डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए ये कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, ये ग्रेटर देन बी, ये ग्रेटर देन बी है क्या नहीं ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर ये ग्रेटर है ये बी से तो ये कंडीशन ट्रू है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ a is greater, ये जो है वो ग्रेटर। अगर ये कंडीशन ऊपर का ट्रू नहीं है फॉल्स है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एल्स वाला पार्ट, दैट इज प्रिंट हियर b is greater, उसके अपोजिट में b is, ये ग्रेटर नहीं है मतलब कौन ग्रेटर है, b ग्रेटर है। Okay, in this way we take the two decisions and we compile the program. After getting zero error, you run the program by clicking Alt R button, and on this console screen you enter the two numbers. So we write here 20 and 30. a की वैल्यू 20 है एंड b की वैल्यू 30 है तो इनमें से कौन ग्रेटर है, b ग्रेटर है, तो यहाँ पर b ग्रेटर आ चुका है। ओके, तो अगर आपको ये वैल्यू जो आया है रीड किया है वो भी प्रिंट करना है स्क्रीन पर तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं %n वैल्यू ऑफ a इज, जो भी वैल्यू स्क्रीन से ले रहे हो वो वैल्यू जो आया है वो अगर आपको प्रिंट करके देखना है, अगर दिखाना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ये में क्या वैल्यू आई है। तो यहाँ पर लिखा है वैल्यू ऑफ ए इज %d, कौन सी टाइप की वैल्यू है %d, तो आपको यहाँ पे %d लिखना है और ये %d और ए वेरिएबल तो यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह आप b वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट हियर /n वैल्यू ऑफ b इज करके %d करके b वैल्यू को आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर सेमीकोलन रहेगा, सेमीकोलन लिख सकते हैं। अब ये प्रोग्राम एक बार रन करिएगा। बिफोर रन द प्रोग्राम यू क्लियर द स्क्रीन, सो CLR क्लियर द स्क्रीन फंक्शन, द प्रीवियस स्क्रीन वाज क्लियर, ये वाला स्क्रीन था
प्रीवियस का, वो क्लियर हो जाएगा। तो वो क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे CLR या CR फंक्शन डाल दिया। अभी मैं करता हूँ प्रोग्राम कंपाइल, तो 0 एरर है, तो मैं करता हूँ रन, तो प्रोग्राम हो जाएगा रन। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे 2 नंबर एंटर करना है, तो मैं पहला नंबर एंटर करता हूँ 40 और दूसरा नंबर एंटर करता हूँ 23। तो इनमें से वैल्यू ऑफ ए इज 20 एंड वैल्यू ऑफ बी 23, और कौन ग्रेटर है, ये इज ग्रेटर। अभी ये इज ग्रेटर एक ही लाइन में आया है। अगर आपको उसको दूसरे लाइन में डिस्प्ले करना है तो आप यहाँ पे फॉर आउटपुट न्यू लाइन में डिस्प्ले करने के लिए ये डिसीजन चेक करने के बाद यहाँ पे /n लिखते हो तो न्यू लाइन में आएगा। अगर ये स्टेटमेंट डिस्प्ले करना है तो /n न्यू लाइन में आ जाएगा। देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैं प्रेस कर रहा हूँ 20 एंड 45, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 45 है, और डिसीजन क्या लिया, बी इज ग्रेटर। तो ये वाला डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम स्टेटमेंट यूज करके हमने ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर बनाए। तो ये 4-5 प्रोग्राम में से आप क्या अंडरस्टैंड कर सकते हो, हाउ टू राइट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन आवर प्रोग्राम। अपने प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग के स्टेटमेंट कैसे यूज करना है। अगर एक से ज्यादा मतलब 1-2 स्टेटमेंट हो गए तो वो कैसे प्रिंट करना है। तो such type of decision we have to implemented in this explore number 5. Now we save this program, so alt here and save as, and explore number 5 and program number is also 5.cpp. In this way we studied here 5 programs related to the decision making and if else statements. Okay, if any doubts, query, then you can ask me on my WhatsApp number or on my WhatsApp number as well as comment box. Okay, so I close the today's session or end the today's session. For closing this window, you press Alt X button or quit. तो यहाँ पे मैं ये Alt X करता हूँ और एग्जिट कर लेता हूँ, तो मैं प्रोग्राम से बाहर आ जाऊंगा। और जैसे ये प्रोग्राम के बाहर आ जाता है तो आपका टर्बो सी भी एड हो जाता है। So in this way we studied here the experiment number 5, practical number 5, having decision making statements, that is if and if else statements. Now I stop here. Thank you very much.